Hello. Today we are going to study about numericals of electrostatics. In last lecture, we are able to do all the theory of electrostatics. In today's lecture, we will start with numericals. Yesterday, I told you that whenever we are doing certain numerical, we have to read that question minimum 2 times. When we understand that question, the second important thing is, first of all, read the question carefully. आपको जब पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए तो उसके बाद सेकंड थिंग इज राइट डाउन द गिवन पार्ट. After writing the given part, do the necessary convergence. Okay, the values of that numerical should be in a single system. That can be MKS or CGS. Basically numericals are done in MKS system only. तो वो MKS system में होना चाहिए, standard units होने चाहिए. Then if there is a diagram, draw a rough diagram of it to understand the figure. Okay, then use the appropriate formula according to the given. Then do the calculation with the help of log. When you have an answer, write its appropriate unit. These are the things which we have to remember whenever we are solving any type of numerical in physics. Okay, अगर हमको न्यूमेरिकल करना है तो हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, गिवन प्रॉपरली लिखेंगे, कन्वर्जेंस करेंगे, रफ डायग्राम है तो बनाएंगे, कैलकुलेशन लॉग से करेंगे एंड जो आंसर आएगा उसको अप्रोप्रिएट यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे. तो नाउ वी विल सी द न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. एंड वन मोर थिंग इज यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूलाज. अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर सकते. तो देयरफॉर यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूलाज. Okay, now see over here. First of all, the thing is we have to read the question carefully. Now see this. Three charges minus q plus capital Q and minus q are placed at equal distance on a straight line. If the potential energy of the system of the three charges is 0, then what is the ratio of capital Q is to small q? In this question, what we have to find at last, we have to find the ratio of capital Q and small q. For this, we should need the relationship between them, between capital Q and small q. Okay. Then, first of all, what will we do? We will write the given part. Then we will do the necessary conversion and draw a rough diagram of it. So see this, the diagram is like this. Three charges are there. This capital Q, which is a plus charge, is at origin. What will be the, sorry, what will be the coordinate of this plus Q? That will be 0 comma 0. Exactly. This will be having 0 comma 0. We have two negative charges equidistant from it, which is minus Q and minus Q. Then coordinate of this one on positive x-axis will be a comma 0. On negative x-axis it will be minus a comma 0. Okay, then see this. In figure, the line joining the charges is shown as x-axis with the origin at plus q charge. Let q1, what is q1? The center charge, which is plus q. What is q2? Q2 is minus q. And what is q3? That is minus q. Is it okay? Then these are what magnitude of the charges. We have taken the center as 1 q1, and then we have taken q2 and q2 and q3. Is it okay? Then now let the two charges at minus a comma 0 and a comma 0, since the charges have given to be equidistant. This is given to be equidistant. R21 is equal to, see this, that is also a, and R31 is also a, and R32 is twice of a. See this diagram first of all. This distance will be a, this much of distance will be a. The distance between these two, R2 and R3, the distance between R2 means charge 2, charge 3 is twice of a. Okay, and we have to find the ratio of capital Q versus small q. Is it okay?
These are the coordinates. Charge 1, charge 2, charge 3. Distance between these two is A, these two is A, and distance from these minus Q charges is twice of A. Okay? Now, see this. This R2 twice of A. The total and potential energy of a system of three charges is, and we know according to the formula for a system of charges, the total potential energy can be given as U3 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught in the bracket Q1 Q2 upon R21, where R21 is the distance between charge Q1 and Q2. Okay, then Q1 upon Q3, Q1 Q3 upon R31 plus Q2 Q3 upon R32. Now we have to put down the values in it. If we put the values, it will be 1 upon 4 pi epsilon naught. What is epsilon naught? Minus Q. What is Q1? Capital Q. What is Q3? Minus Q. What is Q2? That is minus Q. Q3 is also minus Q. Distance between R21 is A. Distance between R31 is A. Distance between R32 is twice of A. Basically, we have put the given part in this. Then it will be, if we solve this one, these two will be, see this, these two is same and this one is different. Therefore this will get added, because minus minus will get added. It will be minus twice of Q, capital Q upon A, plus small q square upon twice of A. But since capital Q is exactly at the center of two negative charges, the potential energy will be equal to 0. Therefore, have U3 is equal to 0. If U3 is equal to 0, the LHS becomes 0. The LHS will become 0. Then see this, LHS becomes 0. 1 upon 4 pi epsilon naught minus twice of Q upon A plus small q square upon twice of A. Okay, then since here it is in division, when we transpose it to left hand side, it will get multiplied. 0 into 4 pi epsilon naught is 0. Exactly. Now we will having only this much of part, which is minus 2qa minus 2q capital Q upon A plus q square upon twice of A. But if we take this minus 2 small q into capital Q upon A to left hand side, it will be twice of small q capital Q upon A is equal to small q square upon twice of A. Then see this, q get cancel, A get cancel from denominator, and this when you take this 2 to right hand side, it will become 4. This q, remaining q to this side, it will be capital Q upon small q is equal to 1:4. This is the required ratio. इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू क्या होगा, तो हमने क्या किया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया, उसको सॉल्व किया, वैल्यूज पुट किए, एंड एट लास्ट वी आर एबल टू फाइंड व्हाट विल बी कैपिटल क्यू अपॉन small q, which is 1/4 exactly. Then now we will move towards next numerical. See this, a capacitor has some dielectric between its plates and the capacitor is connected to a DC source. The battery is now disconnected and then dielectric is removed. पहले हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट किया है और फिर डाइलेक्ट्रिक को भी रिमूव कर दिया. State whether the capacitance, the energy stored in it, the electric field, charge stored and voltage will increase, decrease or remain same. Means हमको क्या पता लगाना है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है, हमने उसको चार्ज किया और डाइलेक्ट्रिक मीडियम को वहां से निकाल दिया. तो अब उसके कैपेसिटेंस पे, उसके एनर्जी पे, उसके वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या रिमेन सेम रहेगा, तो हम वो करेंगे. तो सी दिस सॉल्यूशन, assume a parallel plate capacitor of plate area capital A and plate separations small d is filled with a dielectric of relative permittivity K. Okay, relative permittivity, and dielectric constant is small k. Its capacitance is C is equal to K epsilon naught A upon D, where A is the area, K is dielectric constant, epsilon naught is permittivity of free space,
and d is distance between two parallel plates. This will be our equation number 1. So what we did, we read the question. Okay, parallel plate with a dielectric slab, we charged this capacitor initially, then we will remove the batteries, then we will remove the dielectric medium, then what will happen to its capacitance, its energy and electric field, and store charges and voltage. It will increase or decrease, that we have to see over here. See this. If it is charged to a voltage V, the charge on its plates is capital Q. अगर आपने V वोल्ट से उसको चार्ज किया है तो उसमें कैपेसिटेंस तो सेम होता है, आपको पता है. तो Q is equal to CV हो जाएगा. Yeah, exactly. Since the battery is disconnected after it is charged, the charge Q on its plate and consecutive product CV remains constant. आपने एक बार प्लेट को चार्ज कर दिया तो प्लेट पे चार्ज स्टोर होते हैं, तो वो तो चेंज नहीं होने वाले. तो चार्ज जो रहेगा वो अनचेंज रहेगा. बैटरी को रिमूव करने के बाद भी चार्ज एक कांस्टेंट रहेगा. तो एक आंसर हमको मिल गया. Then on removing the dielectric completely, its capacitance becomes from equation number 1. Equation number 1 के according क्या था जो आपने देखा, that is k times of epsilon naught a upon d था. Yes, तो अब यहाँ पे वहां की वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, c dash dielectric medium, when we remove the dielectric completely in the capacitance becomes, तो अब जो है हमने उसमें से डाइलेक्ट्रिक निकाला तो इसका कैपेसिटेंस बनता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा. क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. के को रिमूव कर दिया हमने. के क्यों रिमूव कर दिया? क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ही नहीं. अभी आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम निकाल दिया है. तो अब हम पहले इक्वेशंस की वैल्यू को देखेंगे और वहां से देखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का वैल्यू क्या होगा. सी दिस. अगर मैं एप्सिलॉन नॉट डी का वैल्यू देखूंगा तो ए इधर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है, सॉरी. तो ये अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो ये सी अपॉन के होगा, के इधर चला जाएगा, सी अपॉन के. तो इंस्टेड ऑफ दिस, see this, instead of this they have written 1 upon k times of c. That is the capacitance decreases by factor k. मतलब इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम निकाला उसका कैपेसिटेंस स्टोर करने का प्रॉपर्टी भी डिक्रीज होगा. थ्योरी में हमने सीखा था जितना डाइलेक्ट्रिक हम पुट करेंगे उतना उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और जितना हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रिमूव करेंगे, जिसका के कांस्टेंट को कम करेंगे, उतना ही उसका कैपेसिटेंस भी डिक्रीज होगा. दैट इज इट्स कैपेसिटेंस डिक्रीजेस बाय फैक्टर के. तो हमको एक क्लियर हो गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम निकालने के बाद उसका कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है. सिंस C डैश V डैश इज इक्वल टू CV, Q चार्ज तो कांस्टेंट है, तो न्यू C डैश V डैश और CV जो होगा वो इक्वल होना चाहिए क्योंकि चार्ज सेम होता है. So therefore, from this we can say that V dash is equal to C upon C dash V. But C upon C dash from above second equation is nothing but what? K. C upon C dash will be nothing but what? K. So we have V dash is equal to K times of V. It makes a sense that कि अब न्यू जितना डाइलेक्ट्रिक K की वैल्यू होगी उतने टाइम्स V भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. So that its voltage increase by the factor of k. अब हम क्या बोल सकते हैं, उसका वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होगा, वोल्टेज इंक्रीज होगा by factor k according to the previous formula. The stored potential energy U is equal to, एनर्जी का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था. तो what is that? U is equal to half of QV. So that Q remains constant, U increases the by the factor k. अब हमको पता है U भी इंक्रीज होगा. कितने फैक्टर से इंक्रीज होगा? k. ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमको पता है. देन द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V बाय D. हाँ, ये फॉर्मूला भी हमको पता है. E इज इक्वल टू क्या होता है? V बाय D होता है. सो दैट E ऑल्सो इंक्रीज बाय फैक्टर k. तो अब हमने क्या क्या बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी k के फैक्टर से इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसकी वो भी k के फैक्टर से इंक्रीज होगी, वोल्टेज भी k से इंक्रीज होगा. ठीक है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटेंस k के फैक्टर से डिक्रीज होगा. Now we will see the next numerical, which is the third one. A 6 microfarad capacitor is charged by a 300 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 3 microfarad capacitor. How much electrostatic energy of the first capacitor is lost in the form of heat and electromagnetic radiation? See over here what we have.
हमारे पास 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर था, उसको हमने 300 वोल्ट के साथ चार्ज किया पहले, ठीक है, चार्ज हो गया पूरा का पूरा, जितना उसका कैपेसिटी है 6 माइक्रोफैरेड का उसमें स्टोर हो जाएगा। इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, उसको रिमूव कर दिया, इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज। अब इस कैपेसिटर को छोटे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया, वो कितने का है, 3 माइक्रोफैरेड का है। तो अब उसके क्या होगा सेकंड केस में, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आपने पहले 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर 300 वोल्ट सप्लाई से चार्ज किया, फिर बैटरी को हटा के उसकी जगह दूसरा कैपेसिटर रखा और उसको कनेक्ट कर दिया। तो पहले वाले 6 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर में क्या होगा, हीट डिसिपेशन से उसकी एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, दैट वी हैव टू फाइंड। तो फर्स्ट थिंग वी हैव रिटन द गिवन पार्ट. After writing given what is the thing, we have to do the conversion. What is the standard form of microfarad? That is in farad, and 1 microfarad is 10 raised to power minus 6 farad. Therefore C1 can also be written as 6 into 10 raised to power minus 6 farad. Then we know the potential difference V, which is 300 volt. Then capacitance of the second one is what, this is 3 microfarad. If it is 3 microfarad, then if we write it in farad, it will be 3 into 10 raised to power minus 6 farad. Okay, now see, the electrostatic energy in the capacitor, we know the formula, half of CV square. So we will find the first of all the energy of the first capacitor when we charge that with 300 volt of supply. Then if we put this value, half of CV square, we know C is 6 into 10 raised to power minus 6 and V is 300. Okay, in this formula, divide this, 2 ones are 3s are 3 into 10 raised to power minus 6. Square of this one will be 9 into 10 raised to power 4. Then if you solve this part, you will get 0.27 joules. Answer comes to be 0.27 joules. There is no need to use log over here because this is simple calculation. जहां पे सिंपल कैलकुलेशन है वहां लॉग नहीं यूज करना है, बट जहां पे थोड़ा टिपिकल होगा वहां पे आपको लॉग यूज करना पड़ेगा, दैट इज मस्ट। अब हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज कंसिडर करेंगे कि इसमें चार्जेस कितने हैं। द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज कैपिटल Q इज इक्वल टू CV। तो अब C पता चल चुका है, C हमें पता है 6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 और वोल्ट भी पता है 300, तो चार्ज कितना होगा, दैट इज 1.8। ओके, इफ वी राइट दिस आंसर इन माइक्रो कूलम, sorry, milli coulomb, that will be 1.8 milli coulomb. Is it okay? Then now we know the charge, we know the energy. अब हमको सेकेंड वाले केस के लिए कंसिडर करना है, व्हेन टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हम दो कैपेसिटर्स को सीरीज में अटैच कर दें तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, द कैपेसिटेंस इज C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो इसका नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा, 6 प्लस 3 विल बी 9 माइक्रोफैरेड और 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 फैरेड। ओके, तो अब हमने पहले कनेक्ट करते ही दोनों कैपेसिटर को जब कनेक्ट किया है तो किस कॉम्बिनेशन में आ गए, वेरी गुड, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों को, इसको हटा के बैटरी को डायरेक्ट कनेक्ट किया ना, तो ये दोनों कैपेसिटर जो है हमारे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। पहले बैटरी थी, अब दूसरा कैपेसिटर है वहां पे। Okay, then by conservation of charge, we know that Q is equal to 1.8 coulomb. Okay, by mistaken over here, we have written 8 point this. If we solve thoroughly, it comes to be 1.8. Okay, then it should be over here. If this is what in milli coulomb, if we write it over here, it should be 1.8 into 10 raised to power minus 3. Okay, by mistaken, I have written this thing. Okay, then it will be 1.8, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस विल बी, मिली था ना वहां पे, तो यहाँ पे हमने कूलम लिखा है, तो यहाँ पे 1.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 कूलम आना चाहिए। द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, दैट इज 1.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 इट्स स्क्वायर divided by 2 into 9 into 10 raised to power minus 6. Now this 18 can be written as 10 raised to power minus 4 instead of 1.8. If you write it as 18, okay,
this will be 18 and this will be 10 raised to power minus 9. This will be 18 into 18. Okay, this will be, that minus 4 will become 10 raised to power minus 8. Now see, in the denominator we have 9 to the 18. 18 into 18 into 10 raised to power minus 6. Over in numerator we have 18 square, in denominator we have 18. This 18 will get cancelled. We have answer 18 into 10 raised to power minus 8 divided by 10 raised to power minus 6. When minus 6 we take into numerator, it will be 10 raised to power minus 8 plus 6. Okay, which can be written as 18 into 10 raised to power minus 2 joules, or it can also be written as 0.18 joules. Then in initial case we have energy of 0.27 joules, and when we combine these two capacitors in parallel combination, then it is 0.18 joules. Then there is loss of energy विच इज 0.09 जूल्स. अगर सिंपल लैंग्वेज में देखिए, पहले हमारे पास एक 6 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटर था, उसको हमने एक बैटरी के साथ अटैच किया 300 वोल्ट की, इसको कंप्लीटली चार्ज किया, इसकी एनर्जी फाइंड की, वो 0.27 जूल्स आया. अब हमने क्या किया, इस बैटरी को हटा के दूसरा कैपेसिटर इसमें लगा दिया जो 3 माइक्रो फैरेड का था. ठीक है, 3 माइक्रो फैरेड का था. तो अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे कैपेसिटर, ये कैपेसिटर दोनों किस कॉम्बिनेशन में आ गए, ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो इसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा हमने वो फाइंड किया और उसकी एनर्जी निकाली, और उसकी एनर्जी निकाली तो वो कितनी आई 0.18. और अगर उसकी एनर्जी 0.18 आई और पहले की 0.27 है, तो यहाँ पे लॉस हुआ है ना इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट 0.09 जूल्स. Okay, now we will see the next. It will be the fourth one because previous one was the third one. Okay, let it be. That is only the number. Then in this numerical, 125 small liquid drops, each carrying a charge of 0.5 microcoulomb and each of diameter 0.1 m from a bigger drop. Calculate the potential at the surface of the bigger drop. तो अब हमें यहाँ क्या करना है, इसका पोटेंशियल फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है. पहले हमारे पास एक ड्रॉप था, ठीक है, अब वो 5 छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गया. बड़ा ड्रॉप है और छोटे छोटे ड्रॉप्स में आ गया, 5 ड्रॉप्स में आ गया. तो अब इनका पोटेंशियल क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड. पहले एक हमारे पास ड्रॉप थी, ठीक है, उसको हमने क्या किया, 125 स्मॉल, सॉरी नॉट 5, दैट इज 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स में कन्वर्ट किया है. एक बड़ा सा ड्रॉप है, जैसे पानी नीचे गिरता है तो स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो दिस बिगर ड्रॉप इज गेट कन्वर्टेड इनटू 125 लिक्विड ड्रॉप्स, ईच कैरिंग अ चार्ज. और जो छोटे ड्रॉप्स हैं उनका चार्ज कितना है, 0.5 माइक्रोकूलम है, और उनका डायमीटर 0.1 है, मीटर है. फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द, सॉरी अभी इस क्वेश्चन को पढ़ना है सिंपल वे से और फिर उसको अंडरस्टैंड करना है. तो इन्होंने पहले क्या बताया, बड़े ड्रॉप से छोटे पे नहीं कन्वर्ट हुआ. किसी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इफ यू हैव अ बिगर ड्रॉप एंड इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू 125 ड्रॉप्स. बट इन्होंने क्या इसको वाइसा वर्सा पूछा है, इन्होंने पूछा है कि आपके पास 125 स्मॉल ड्रॉप्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे ड्रॉप्स आपने मिक्स करके एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया, और जो छोटे ड्रॉप है उसका चार्ज है 0.5 माइक्रोकूलम, उसका डायमीटर है 0.1 मीटर. अब इनको जोड़ जोड़ के आपने एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड. 125 ड्रॉप्स को कंबाइन करने के बाद उसका पोटेंशियल कितना होगा वो हमको निकालना है. द रेडियस, सी दिस, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ड्रॉप्स 125, चार्ज 0.5 into 10 raised to power minus 6 coulomb, because that is micro will be get converted into coulomb by multiplying it with 10 raised to power minus 6. D is equal to 0.1 meter. Then we know the diameter, the radius will be 0.05 meter. The volume of large drop begin equal to the volume of n small drops. The radius of the larger drop is, अब हमको एक चीज तो पता है, वॉल्यूम तो सेम ही रहता है ना, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा कंबाइन होने के बाद. आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके रिकास्ट करो या लिक्विड फॉर्म में चेंज करो, शेप चेंज हो जाएगा बट वॉल्यूम विल रिमेन द सेम, सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा. Therefore r will be cube root of n times of r, then that will be 125 0.05, okay, inside the square root. Then if we multiply, if we take it square root outside, it will become
5 into 0.05. Okay, this r is outside, sorry, r is an outside, therefore it will be what, one is, we have r cube root of n into r is outside the square cube root, small r is outside the cube root, then cube root of 125 is 5, and since r is outside it will remain same 0.05, it will be 5 into 0.05 which is 0.25 मीटर. तो हमें रेडियस मिल गया है, अभी जो बिगर ड्रॉप है उसका रेडियस मिल गया. देन द चार्ज ऑन द लार्जर ड्रॉप निकालना है, तो Q इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू क्यू. तो स्मॉल एन कितना है, 125 है, और एक छोटे से ड्रॉप का चार्ज कितना था, 0.5 इंटू 10⁻⁶. तो हमें टोटल चार्ज मिल गया है, जो बड़े ड्रॉप पे जो टोटल चार्ज है वो हमें पता चल गया. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ द लार्ज ड्रॉप, अभी हमें सरफेस का निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. स्पेयर के ऊपर का हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल. तो कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. एग्जैक्टली. तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. वी नो वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 into 10⁻⁹. Value of Q is 125 into 0.5 into 10⁻⁶ coulomb. What is the value of capital R? That is 0.25 meters. Then if we do this calculation, it will be 9 into 125 into 2 into 10⁻�3. Then because ये 1 जा ये 2 जा हो जाएगा, तो it comes to be 2, and this will be 2.25 into 10⁻⁶ volt. तो अगर हमने 125 ड्रॉप्स को कंबाइन किया तो उसका जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी 2.25 into 10⁻⁶ वोल्ट. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया कि अगर हमने छोटे छोटे 125 लिक्विड ड्रॉप्स को कंबाइन किया और एक बड़ा ड्रॉप बनाया तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, एंड दैट इज 2.25 into 10⁻⁶ वोल्ट. Now, next numerical, the dipole moment of a water molecule. You know what is the formula for a water molecule? That is H2O. That is basically H2O. Then the dipole moment of a water molecule is 6.3 into 10⁻⁻30 coulomb meter. A sample of water contains 10⁻21 molecules. तो अभी पहले dipole moment P पता है, दूसरा number of molecules पता है, whose dipole moment are all oriented in an electric field. वो सब electric field में oriented है of a strength 2.5 into 10⁻⁵ Newton per coulomb. तो इससे electric field भी हमको पता है. Calculate the work done to be done to rotate the dipole from their initial orientation theta is equal to 0 to 1 in which all the dipoles are perpendicular to Q2 at 90 degree. तो एक डायपोल है उसको ऐसे मूव करना है कि वो 90 डिग्री बनाए, 0 से स्टार्ट हुआ 90 डिग्री पे जाए. तो अब हमें गिवन देखना है, पहले मूवमेंट पता है 6.3 into 10⁻⁻3. ओके, कूलम पर मीटर. ओके, कूलम मीटर, सॉरी my mistake, movement is 6.3 into 10⁻⁻3 coulomb meter. This should be capital C, not small c. Okay, capital C is to small m. Total number of drop is molecules are 10⁻21 molecules. Total number of molecules of H2O, 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen. Then E, electric field is 2.5 into 10⁻⁵ Newton per coulomb. Theta naught or theta 1, initial angle is 0 degree and final angle is, which is theta or theta 2, is 90 degree. तो हमें initial angles पता है, E पता है, N पता है, P पता है. तो अब हम क्या निकालेंगे, we will find the work done. और work done का फॉर्मूला हमको पता है, P into E in the brackets cos theta 1 minus cos theta 2. अगर हमने इधर वैल्यूज पुट किए तो ये क्या हो जाएंगे, 10⁻21 6.3 into 10⁻⁻30 into 2.5 into 10⁻⁵. और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15.75 into 10⁻⁴ जूल्स. और अगर हमको उसको मिली जूल में लिखना है तो उसके 3 को रिमूव करना पड़ेगा 10⁻⁴ के, और 10 को अगर फिर हम देन यहाँ पे अगर हम इसको लिख सकते हैं तो वो कितना हो जाएगा 1.7575. ओके, मिली जूल्स. इज इट ओके? और राइट इट डाउन सेम, नीचे का लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपने जूल्स में भी लिखा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे.
क्योंकि जूल इज अ स्टैंडर्ड यूनिट विच विल बी 15.75 into 10 raised to power 4 joules. Okay, now we will see the next numerical. This is one important one and easier also, and this we have discussed in last lecture. What are the formulas? Find the equivalent capacitance between P and Q given area of each plate capital A and separation between plates is D. तो अब हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, उसकी विड्थ d/3 है, एक K2 है जिसकी विड्थ d/3 है, और सेकंड जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है और उसका विड्थ d/3 है। इससे हम बोल सकते हैं विड्थ सेम है तीनों का, d/3 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 फर्स्ट फिगर के लिए, बट K1 डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो कांस्टेंट है वो चेंज हो रहा है। तो इस टाइप का कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है? दिस इज द टाइप ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। ओके, तो अब हम ये वाला देखेंगे। सेकेंड केस में क्या है, ये दोनों सीरीज में है और एक दूसरे के साथ वो पैरेलल में है, ये दोनों सीरीज में है और इसके साथ पैरेलल में है, तो हम इन दोनों का पहले सीरीज में निकालेंगे और फिर इसको पैरेलल के साथ करेंगे, इसमें तीनों के तीनों, ठीक है। तो अब चेक करते हैं हम। See this capacitor are shown in the figure A, series combination of 3 capacitors of the plate. तो ये देखो यहाँ पे ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, सॉरी माय मिस्टेक, इट शुड बी इन सीरीज, 1 2 and 3 आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में होंगे और इसके साथ पैरेलल में होंगे, ये तीनों सीरीज में है। तो द कॉम्बिनेशन 3 कैपेसिटर ऑफ अ पैरेलल प्लेट सेपरेशन d/3 and plates area capital A and C1 filled with air K1 is equal to 1, C2 filled with the dielectric K2 3, C3 filled with dielectric K3 6। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, 3 है, 6 है और उनकी जो विड्थ है वो सेम है d/3। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A d/3, और अगर हम K की वैल्यू पुट कर दे तो थ्राइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट A d/K1। ओके, वैसे ही आप सब वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो वी विल गेट दीज 3 थिंग्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे d/3 सेम है, बस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ये गलत है कि यहाँ पे आना चाहिए था 1, C1 शुड बी 1, इट शुड बी 1 एप्सिलॉन नॉट K1। ओके, सी दिस, इट शुड बी 1, ये इधर 1 होगा, यहाँ पे 3 होगा और दिस शुड बी 6, दिस शुड बी 6। ठीक है, यहां प्रिंटिंग मिस्टेक हो रहा है। ओके, ये यहां पे 1 है, इसको कट कर देते हैं हम, यहां पे इधर नहीं, इधर 3 है क्योंकि सेकंड का 3 है, और हियर इट इज 6, इंस्टेड ऑफ दिस देयर इज 6। ओके, मेरे लिखने में गलत हो गया है। हियर वी हैव 1, हियर वी हैव 3 एंड हियर वी हैव 6। ओके, six, this one is 3 only, this one is, instead of this is 1 exactly। तो अब हमें ये हो गया, अब हम नेक्स्ट कंसिडरेशन करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, ये 1 होगा, पहला 1 है, दूसरा 3 है एंड थर्ड, हमने सिर्फ K1 K2 K3 की वैल्यू पुट करनी है इसमें। नाउ सी दिस, अगर हम यहाँ पुट कर दे 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 वैल्यूज पुट किए, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा d/3 ऑफ एप्सिलॉन नॉट A 1/K1 + 1/K2 + 1/K3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल हैविंग अ फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल भी ले लिया है, पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे K2 K3 K1 K3 K2 K3 होल डिवाइडेड बाय K1 K2 K3। बट अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो ये एडजस्टमेंट करके फॉर्मूला बनाया, यहाँ पे हमने इसके ऊपर वाले को एडजस्टमेंट करके नीचे फॉर्मूला बनाया। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, K1 K2 K3 क्या है, 1 × 3 × 6, 1 3 = 3, 3 6 = 18, फिर नीचे आंसर निकालेंगे तो 27 होगा, 9 2 and 9 3 3 3 get cancel, it will be twice of epsilon naught A by D। तो हमें पहले का कैपेसिटेंस मिल गया है। अब पहले का कैपेसिटेंस कितना आया, ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तीनों को हमने कैसे कंसिडर किया है, सीरीज में, तो इन तीनों को सीरीज में फाइंड किया और आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट केस के लिए देखेंगे, तो नेक्स्ट केस में क्या देखना पड़ेगा हमको? नेक्स्ट केस में ये डायग्राम देखेंगे आप लोग। इस डायग्राम में सेकेंड डायग्राम को आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब सेकेंड डायग्राम को अगर आप देखोगे, आप बैकवर्ड वीडियो को ले जाके डायग्राम चेक कर सकते हैं। फिगर बी, अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स C2 is, and dielectric constant of it is 3, C3 which capacitance is 6 of the parallel plate areas A by 2 plate separated by distance D by 2 is in parallel with a capacitor C1 where K is equal to 4 of a plate area A by 2 and the plate separation is small d. तो अब यहाँ पे क्या होगा आगे, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, बेसिकली ये हमने गिवन पार्ट लिख दिया सब, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। एरिया A by 2 हो गया यहाँ पे सेपरेशन, अब A नहीं है तो एरिया की जगह A by 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो ये फॉर्मूला बनेगा, सब में इसमें भी एरिया A by 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे हम कंसिडरेशन करेंगे तो वी विल गेटिंग दीज 3 फॉर्मूलाज, ओके। देन इधर के तो 2, यहाँ पे डी बाई भी चेंज हुआ है ना, यहाँ पे डी बाई भी 2 है, तो इसको कैंसिल होके ये मिलेगा हमें C1, C2 एंड C3 के वैल्यूज ये 3 होंगे जो हमने डिराइव कर दिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ K एंड D। यहाँ पे D D है, यहाँ पे A by 2 है और D D by 2 है, फिर पुट किया, सॉल्व किया। देन वी विल हैविंग फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन C2 C3 सीरीज में, C2 C3 डायग्राम में आप चेक कर सकते हैं, C2 C3 सीरीज में है, सॉरी सीरीज में है, तो उसका कैसे निकालेंगे? 1/C4 1/C2 प्लस 1/C3। आपको याद रखना है रेजिस्टर के अपोजिट होता है, यहाँ पे सीरीज में होगा तो अपॉन में होता है। देन इट विल बी C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, ये एडजस्टमेंट है ऊपर वाले फॉर्मूले का। फिर आप अगर वैल्यूज पुट करेंगे वी विल गेटिंग दिस न्यू फॉर्मूला। हियर पुट द वैल्यू ऑफ K2 दैट इज 3, पुट द वैल्यू ऑफ K3 which is 6, put the value of K2 that is 3, put the value of K3 which is 6. And if you solve this one, 6 3 is 18, 18 divided by 9, that will be 2, twice of epsilon naught A upon D. Now we got the net capacitance of C2 and C3. अब हम क्या करेंगे? C2 और C3 का कैपेसिटेंस मिल गया, तो अब C1 को C4 के साथ निकालेंगे, और C1 को C4 के साथ निकालेंगे तो अब ये दोनों पैरेलल में है, जो हमारा न्यू कैपेसिटेंस आया है C2 और C3 का, और C1 के साथ वो पैरेलल में है, तो अब उसको क्या करेंगे? डायरेक्ट ऐड करेंगे, C डबल डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C4, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D इंटू K होता है, और K की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 है, वो गिवन है, तो 4 लिख दिया हमने K की वैल्यू की जगह। दूसरा C4 तो हमने अभी जस्ट निकाला है, दैट इज ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। Solve this one by taking LCM numerator and denominator multiply by 2, तो ये क्या हो जाएगा? 4 epsilon naught A by D। Then thus equivalent capacitance R, तो पहले कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और सेकेंड वाले कैपेसिटेंस का जो है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये दो केसेस के लिए हमने सेपरेटली क्या किए? कैपेसिटेंस फाइंड किए। पहले सीरीज में थे तीनों, दूसरे में 2 सीरीज में थे, उसका जो नेट आएगा वो पहले के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में था। ओके, नाउ वी हैव सीन दिस न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओवर हियर। ओके, देन यू हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स। आपको ये राइटिंग में प्रैक्टिस होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स अब हमने एक्सप्लेन करते टाइम तो आपको कर दिया है, बट आप जब घर पे करेंगे तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस न्यूमेरिकल्स। आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप राइटिंग में प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल, तभी आपको आएंगे। विदाउट प्रैक्टिस न्यूमेरिकल नहीं आ सकता। जैसे साइकिलिंग आपको सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2-3 बार गिरना पड़ेगा, उसके बाद आप साइकिल एक अच्छे से सीख सकते हो। विदाउट प्रैक्टिस घर में बैठ के ऑनलाइन साइकिलिंग आएगा? नहीं, कभी नहीं आएगा। आपने जब सीखा भी होगा तो बहुत बार ट्राई किया होगा, बहुत बार गिरे होंगे आप। जस्ट लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स फर्स्ट, और कभी गलत होंगे कभी सही होंगे, बट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस फॉर न्यूमेरिकल्स। ओके, okay, but if you have any doubt regarding the theory of electrostatics or numerical, you can ask us on WhatsApp or in YouTube comment box. Okay, thank you. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके रिगार्डिंग? बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, एज वेल एज नीट एंड जेई। तो ये अच्छे से प्रिपेयर करना है आप लोगों ने। ओके, देन
Bye, all of you. Thank you.